welcome in RBC Online. I am Dattatreya Raut. Now today we are to discuss about the in molecular basis of inheritance. The new aspect is the that is known as the Hershey-Chase experiment. Now in a previous video you have to discuss about the now which is known as the Griffith experiments and Avery-McCarty experiments. Now today we have to discuss about the Hershey-Chase experiments regards to the DNA is the genetic material. Now in the DNA is the genetic material. So in this Hershey-Chase experiment, in this video we have to discuss in detail about the Hershey-Chase experiments. In Hershey-Chase experiments, now these are the two scientists which are the very well known scientists in the regards to the experiments to the identification which one is the genetic material. It may be a protein or it may be DNA or it may be or both. Now in this Hershey-Chase work with the virus. Now it is clearly to explain here about the experiments of the Hershey-Chase. In the Hershey-Chase experiment, which is the work on the virus that infect a bacteria, and that virus is known as the bacteriophages. A bacteriophage in 1952 carried out the series of experiments conducted that helped to confirm that the DNA is a genetic material. Now friends, is clearly to explain here in 1952 Hershey and Chase experiment. These are the two scientists work on the virus. That virus is known as the bacteriophage. Why the called as the bacteriophage? Because virus which are the infect the bacteria, cause the infection to the bacteria, so called the bacteriophage. Carried out a series of the experiments to confirm that DNA is the genetic material. So in the experiments, bacteriophages which are composed of a DNA and protein. Why select the bacteriophages? Because which are contain the proteins and DNA. Question is arising here, whether a protein is a genetic material or DNA is the genetic material. So Hershey and Chase carried out the experiment with regards to the taking the virus. That virus caused the infection to the bacteria, and bacteriophages which composed of the DNA and proteins. Bacteriophage T2 composed of 50% protein and 50% DNA. Now a bacteriophage which is known as the which bacteriophage, नीट के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे. Which bacteriophages are used in the Hershey-Chase experiment? T2 a bacteriophage composed of 50% प्रोटीन, जिसमें 50% प्रोटीन है एंड 50% DNA है. नाउ इन द Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट उन्होंने बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया. दैट बैक्टीरिया is E. coli to infect the virus, infect the virus to the bacteria. Bacteria कौन सा बैक्टीरिया सेलेक्ट किया? E. coli, or that is known as the virus that is called as the bacteriophages T2. They wanted to determine which of these molecules is the genetic material that enters into the body of bacteria. उन्हें ये पता लगाना था
दे वांटेड टू डिटरमाइन, इन दोनों को, हर्शी एंड चास, इन दोनों को यह पता लगाना था कि कौन सा मॉलिक्यूल्स इज द जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इंटर्स इनटू द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया में पाए जाते थे, उन बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटीन है या डीएनए है, उसे पता लगाना था। इसीलिए हर्शी चास एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। हर्शी चास एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट द सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। यह हमें क्लियर बात आपके सामने रखनी है। आपको ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जो वायरस इसलिए उसे बैक्टीरियोफैग कहते हैं और बैक्टीरियोफैग को T2, उसमें 50% प्रोटीन है, 50% डीएनए है। दे वांटेड टू डिटरमाइन, उन्हें क्या पता लगा रहा था, मॉलिक्यूल इज जेनेटिक मटेरियल दैट इंटर्स इनटू द बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया यूज, उन्होंने ई बैक्टीरिया को यूज किया। देन आफ्टर द प्रोसीड टू द एक्सपेरिमेंट। हमें यह पता होना चाहिए कि हर्शी चास एक्सपेरिमेंट में जो वायरस को यूज किया वो वायरस इन्फेक्ट टू द बैक्टीरिया कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेजेस T2, then goes to the proceed the experiments Hershey Chas. Now these experiments which are carried out, which type of the bacteria are used, E. coli and a bacteriophages is the virus। इस प्रकार का जो वायरस हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ये जो वायरस है, ये वायरस दैट इज कॉज द इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया, so called the bacteriophages। These both scientists is the American biologist। ये जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, यह है अल्फ्रेड हर्शी एंड दिस co-workers of the in experiments that is the मार्था चास। ये दोनों जो साइंटिस्ट है अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, इन्होंने यह पता लगवाया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इससे हमें यह पता होता है। नाउ बैक्टीरियोफेजेस, ये जो बैक्टीरियोफैग है, हमें यहाँ पर बैक्टीरियोफैग में हम अगर डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता होता है उसका जो आउटर लेयर्स जो है, हेड है, मिडल पीस है एंड बेस है। नाउ टेल, नाउ दिस द टेल, बेस प्लेट्स है, टेल फाइबर्स है, सीथ है, देन नेक है, हेड है, कोटिंग ऑफ दिस हेड इज कैप्सिड्स, और उसमें देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द डीएनए। उसके अंदर, हेड के अंदर डीएनए मौजूद प्रेजेंट है। अ बैक्टीरियोफेजेस दैट विल बी कॉज द इन्फेक्शन टू द बैक्टीरिया which is known as the bacteriophages। These are the American biologist Alfred Hershey and Martha Chas। दोनों ने एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट किया, और एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट करने के समय उन्होंने ये भी पता लगवाया है कि व्हेन वायरसेस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवाता है, their genetic material is injected in the bacterial cell। ओ बैक्टीरियोफैग का, वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरिया में इंटर करता है। their genetic material are injected in the bacterial cell। इकोलाई बैक्टीरिया को यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है। When viruses infect the bacteria, जब वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाता है, their genetic material is injected in the bacterial cell। बैक्टीरियल सेल में उसका इंजेक्ट होता है। Then after what happens? Hershey and Chas work to discover whether it was DNA or protein। जो बैक्टीरिया को वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट होता है,
वो जेनेटिक मटेरियल वेदर इट वाज डीएनए और प्रोटीन, वो डीएनए है या प्रोटीन है, इसे पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट को कैरीड आउट करते समय उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या सेलेक्ट किया, दे आर यूज द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्रगण, दे यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि हर्सी चास एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वायरस को सेलेक्ट किया, दैट वायरस इज नोन एज द बैक्टीरियोफेज, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवाता है। जो बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया वो दैट बैक्टीरिया इज नोन एज द ई कोलाई। देन दे आर यूज टू रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को सेलेक्ट किया। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो उसके जो आइसोटोप्स है that will be a 32 phosphorus and another one is the radioactive sulfur 35s for some others. Now in these experiments Hershey and Chas they use the radioactive phosphorus। जो phosphorus जो है वो डीएनए में पाए जाते हैं, सल्फर डीएनए में नहीं पाए जाते। देन हम प्रोटीन के बारे में सोचते हैं तो प्रोटीन में सल्फर पाए जाते हैं लेकिन फास्फोरस नहीं पाए जाते। इससे हमें ये उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस को आइसोटोप को सेलेक्ट किया 32 एंड रेडियोएक्टिव सल्फर इज द 35s। डीएनए कंटेन फॉस्फोरस नॉट सल्फर, डीएनए में क्या मौजूद है, अब फॉस्फोरस प्रेजेंट है नॉट सल्फर, उनमें सल्फर नहीं है। वाइल प्रोटीन्स कंटेन, वाइल प्रोटीन में क्या है, अ प्रोटीन कंटेन द सल्फर नॉट अ फॉस्फोरस, उनमें फॉस्फोरस नहीं है। DNA contain the phosphorus and not sulfur, while protein contain the sulfur not phosphorus. Now in the third one, first one अपने हमें पता है जो बैक्टीरियोफेजेस वायरस लिया, इकोलाई बैक्टीरिया लिए, उसके बाद रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लिए। दिस इज अ स्ट्रांगली implicate that genetic information necessary for the viral reproduction was present in the DNA. This is strongly implicate that genetic information necessary for viral reproduction, इसे क्या पता होता है? Now in the जब भी वायरस को रिप्रोडक्शन करवाना होता है तो देयर इज अ नेसेसरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दिस इज स्ट्रांगली इम्प्लीट दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर वायरल रिप्रोडक्शंस वाज प्रेजेंट इन द डीएनए। आपको पता है डीएनए व्हिच आर हैविंग द जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड दैट विल बी अ नेसेसरी फॉर अ वायरल रिप्रोडक्शन। जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाता है तो उसी समय दैट विल बी गोज द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, वो बैक्टीरियल सेल में चला जाता है। दे ग्रो सम वायरसेस ऑन द मीडियम। उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट्स में जब उन्होंने प्रोसीड करते समय दे ग्रो दिस वायरसेस, जो वायरसेस यहां पर है वो वायरसेस दैट विल बी कंटेन्ड रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन्ड द रेडियोएक्टिव सल्फर। नाउ इन दी some viruses grow on the medium that will be contain the radioactive phosphorus। जो मीडियम उन्होंने लिया उस मीडियम में ये हमें पता था
रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में सम वायरसेस को इंसर्ट करवाया एंड अदर मीडियम में जिस पर रेडियो एक्टिव सल्फर है उन्होंने some viruses को another medium, that medium contain the radioactive sulfur and another medium which are the contain the phosphorus, radioactive phosphorus. Then what happens? Viruses grown in the presence of the radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive protein cause become DNA contain the phosphorus labeled DNA. इससे हमें यह पता होता है मीडियम जो मीडियम वायरसेस ग्रो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, जिनमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है उनमें कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, लेबल्ड डीएनए, जिनमें उन्होंने लेबल करवाया, बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स बिकम अ डीएनए कंटेन फॉस्फोरस, जिन मीडियम में जो मीडियम में रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स है दैट विल बी बिकम अ डीएनए कंटेन द फॉस्फोरस इज नॉट अ फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए। जो लेबल्ड डीएनए है बट प्रोटीन्स डू नॉट सिमिलरली। Viruses grown on radioactive sulfur contain the radioactive proteins but not radioactive DNA become a DNA does not contain the sulfur. Radioactive DNA become a DNA does not contain the sulfur, जिनमें उन्होंने सल्फर नहीं पाया। But protein do not similarly. Viruses grown on the radioactive sulfur. Radioactive sulfur में जब DNA grow that will be contain the radioactive protein but not radioactive DNA, वो radioactive DNA नहीं है, DNA does not contain the sulfur, उन्होंने उस पर सल्फर नहीं पाया गया। Now here इससे हमें ये पता लगता है जब कोई मीडियम में वायरसेस ग्रो होता है तो हर्शी-चास एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करवाया है कि व्हाट हैपन्स। जैसे कि हम आपको बता देते हैं हर्शी-चास एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं लेबल्ड फैजेस, जो कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। नाउ दिस 32P लेबल्ड डीएनए एंड 35S लेबल्ड प्रोटीन, जो भी लेबल्ड प्रोटीन है, लेबल्ड डीएनए जो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, डीएनए विच आर दी कंटेन दी फॉस्फोरस एंड 35S सल्फर लेबल्ड प्रोटीन, जिनमें सल्फर में सल्फर पाया, प्रोटीन में सल्फर पाए जाते हैं, दैट विल बी कंटेन दिस वायरसेस। इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाने के बाद रेडियोएक्टिव होस्ट सेल्स वहां पर हमें दिखाई दिए, रेडियोएक्टिव फेज घोस्ट वहां पर हमें दिखाई नहीं दिए। इससे ये पता होता है, ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है जब भी डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करते हैं रेडियोएक्टिव होस्ट सेल्स उनमें पाए गए, radioactive facts ghosts are outside the body. So in this bacterial cell, these are the experimentally proved that series of experiments are conducted on these viruses that will be infect to the bacteria, bacteria को infect करवाया। labeled phages जो है 32P लेबल्ड डीएनए, 35S सल्फर आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप लेबल्ड प्रोटीन्स, जिनमें उन्होंने इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद रेडियोएक्टिव होस्ट सेल में देयर इज अ डीएनए आर द ऑकर्ड, डीएनए आर इंटर इनटू इनसाइड द सेल ऑफ द बैक्टीरिया, बट हियर नाउ इन दिस रेडियोएक्टिव फैजेस में जब 35S लेबल्ड प्रोटीन को इन्फेक्शन करवाया तो वहां पे देयर इज नॉट फाउंड दी
such type of the infection. Now the further experiments. देखिए इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें ये पता होता है, अब प्रोटीन्स है, इकोलाई है, डीएनए है, टू फैज यानी कि बैक्टीरियोफेजेस है, ग्रो किया मीडियम में, इन्फेक्ट टू दी इकोलाई को इन्फेक्ट करवाया, इन्फेक्ट करवाने के बाद वहाँ पे सेंट्रीफ्यूग मशीन्स में उसे सेंट्रीफ्यूज करवाया, that will be cause the infection. Then experiment second one, two facts, then are the grow infect the unlabeled E. coli, then in centrifuge machines that will be settle down, then goes to the identification of the DNA of the viruses. In this way, in the experiment of the Hershey-Chas, radioactive facts were allowed to infect the E. coli. जब रेडियोएक्टिव फेजेस वेयर, जो रेडियोएक्टिव फेजेस हमने पाए, वेयर अलाउड टू इन्फेक्ट द ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रोन ऑन द मीडियम containing normal P and S, that as a infection proceeded. जब रेडियोएक्टिव फेजेस वेयर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई, ये रेडियोएक्टिव फेजेस है जिनमें हमने उसे देयर इज अ ग्रो ऑन दी रेडियोएक्टिव मीडियम्स, बैक्टीरिया ग्रोन ऑन दी मीडियम, बैक्टीरिया को ग्रोन करवाया मीडियम में कंटेनिंग नॉर्मल पी एंड एस, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, जैसे ही इन्फेक्शन को प्रोसीड करवाया, the viral coats were removed with the help of the centrifuge. Viral coat जो होते हैं, that is a capsids, that will be removed with the help of the centrifuge. सेंट्रीफ्यूज मशीन से उसे कोट को, वायरल कोट को हमने हर्शी-चास ने रिमूव करवाया. बैक्टीरिया विच वेयर इन्फेक्ट by viruses with the radioactive DNA. Where radioactive DNA, when are the infection cause to the viruses, indicating that DNA was the material, DNA was the material that passed from the viruses to the bacteria. देखिए यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज अ मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरसेस टू द बैक्टीरिया. डीएनए कहाँ पर है? वायरसेस के कैप्सिड के हेड में है, जो कि कैप्सिड इज अ कोटिंग लेयर्स है, जिससे हमने वायरल कोट को सेंट्रीफ्यूज से रिमूव करवाया. Then infect to the bacteria, infected by the viruses with the radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was a material that passed from the viruses to the bacteria. बैक्टीरिया में उसका इंसर्ट हो गया, इंटर हो गया, बैक्टीरिया विच वे आर इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस, जबकि बैक्टीरिया आर इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस. वायरसेस से बैक्टीरिया को जब इन्फेक्शन कॉज हुआ, हैविंग अ रेडियोएक्टिव सल्फर वेयर नॉट अ रेडियोएक्टिव, जिनमें देयर इज अ बैक्टीरिया विच आर वेयर इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस हैविंग अ रेडियोएक्टिव सल्फर वेर नॉट अ रेडियोएक्टिव, वहां पे वो रेडियोएक्टिव नहीं पाए गए. देन व्हाट हैपन्स नाउ इन दी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, देन व्हाट हैपन्स नाउ, दीज आर दी बैक्टीरियोफेगस हर्शी-चास एक्सपेरिमेंट्स. हम इससे पता लगवा सकते हैं जब भी एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया,
bacteriophage sulfur labeled protein capsule and phosphorus labeled DNA core. यहाँ पर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को हम देख सकते हैं. Bacteriophages, these bacteriophages which are having the sulfur labeled protein capsule, वहाँ पर सल्फर लेबल्ड है प्रोटीन है, सिर्फ सल्फर लेबल्ड प्रोटीन है. और अनदर वायरसेस में फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए कोर है. जबकि हम उनको बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन करवाते हैं. व्हेन आर ऑन दी सेल which are the inject the viruses to the bacterial cell, then infection is caused to the bacterial cell by the viruses. Now in the viruses which are infection to the bacterial cell, and then what happens, then सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में वहाँ पर हम उसके ऑब्जर्वेशन करते हैं तो नो सल्फर बैक्टीरिया इन द सेल. जो बैक्टीरियल सेल को सल्फर लेबल्ड प्रोटीन से इन्फेक्शन करवाया तो नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल. सेल में सल्फर नहीं डिटेक्टेड हुए. और फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवाया तो फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल. फॉस्फोरस सेल में डिटेक्टेड पाए गए. सल्फर डिटेक्टेड इन अ सुपरटेंट, नो फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन द सुपरटेंट. सुपरटेंट में फॉस्फोरस पाए गए, नॉट फाउंड, नो फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन दी सुपरनेटेंट एंड सल्फर डिटेक्टेड इन दी सुपरनेटेंट. सुपरनेटेंट में सल्फर पाए गए, फॉस्फोरस सुपरनेटेंट में नहीं पाए गए. इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट में ये पता होता है डीएनए इज दी कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. देन व्हेन अ phosphorus labeled DNA which are the infect to the bacterial cell, then insert the DNA into the bacterial cell. That's why DNA which are the contain the phosphorus. जहां पर फॉस्फोरस पाए गए, जो डीएनए के साथ में उसका इंसर्शन हुआ, इंटर हुआ बैक्टीरियल सेल में, इसीलिए फॉस्फोरस सुपरनेटेंट में नहीं पाए गए. अगर हम अदर हैंड पर हम देख सकते हैं अनदर मीडियम पे सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल में जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवाया तो उस समय there is a sulfur which are the not enter into the inside the bacterial cell. No sulfur detected in the cell. बैक्टीरियल सेल में सल्फर को डिटेक्ट नहीं पाया गया, वहां पर नहीं थे. नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल. सेल में सल्फर नहीं पाए गए, लेकिन अदर हैंड में हम देख सकते हैं फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल. फॉस्फोरस सेल में डिटेक्टेड हुए. इस प्रकार से ये हर्शी चास ने जब एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया तो ये पता लगवाया देयर इज दी डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल. डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, नॉट अ प्रोटीन. प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है. दिस इंडिकेट दैट protein from the viruses did not enter the bacteria. प्रोटीन बैक्टीरिया में इंटर नहीं होते. दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन्स फ्रॉम द वायरसेस डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में इंटर नहीं होते.
DNA is therefore genetic material that passed from the virus to bacteria. अगर प्रोटीन उनमें इंटर नहीं होते तो डीएनए इंटर होते. Genetic material that passed from the virus to bacteria. This indicate that proteins is the not a genetic material, DNA is the a genetic material. DNA ही genetic material है, protein genetic material नहीं है, because the proteins from the viruses did not enter the bacterial cell. बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन इंटर नहीं होते, ओनली डीएनए ही बैक्टीरियल सेल में इंटर होते हैं. इन अदर वर्ड्स, हम अदर वर्ड्स में ये पता लगा सकते हैं, सम टाइम आफ्टर इन्फेक्शन रेडियो एक्टिविटी फॉर P एंड रेडियो एक्टिविटी फॉर S वॉज टेस्टेड. समटाइम्स में कभी आफ्टर इन्फेक्शन करने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद रेडियो एक्टिविटी को टेस्ट करवाते हैं. रेडियो एक्टिविटी टेस्ट फॉर द फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिविटी टेस्ट फॉर द सल्फर. इन समटाइम्स आफ्टर द इन्फेक्शन होने के बाद रेडियो एक्टिविटी टेस्ट फॉर द फॉस्फोरस के को टेस्ट करवाते हैं और सल्फर को भी टेस्ट करवाते. ओनली रेडियो एक्टिविटी, जो भी रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करवाते हैं, फॉस्फोरस वॉज फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. रेडियो एक्टिविटी जब उसे टेस्ट को करवाते हैं तो बैक्टीरियल सेल में, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, phosphorus was found inside the bacterial cell. वहां पर फॉस्फोरस पाए गए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, इंडिकेटिंग दैट, इससे ये पता हो लगता है, दिस इंडिकेटिंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इससे पता होता है. नाउ ये रेडियो एक्टिविटी टेस्ट क्या है? जब इन्फेक्शन कॉज होने के बाद वो बैक्टीरियल सेल की जो रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करवाते हैं. अगर रेडियो एक्टिविटी टेस्ट में ओनली सल्फर इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, सल्फर बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया गया, रेडियो एक्टिविटी टेस्ट में नहीं पाया गया, ओनली फॉस्फोरस वाज फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. ओनली phosphorus was found inside the bacterial cell. and phosphorus कहां पे है, किसके साथ है, किसके along with है? डीएनए के along with है, क्योंकि डीएनए सल्फर में नहीं है. डीएनए सल्फर में नहीं पाए जाते, ओनली फॉस्फोरस पाए जाते हैं. तो प्रोटीन में सल्फर पाए जाते हैं, फॉस्फोरस नहीं पाए जाते. अगर सल्फर नहीं है तो प्रोटीन भी नहीं है, अगर वहां पे फॉस्फोरस है तो वहां पर डीएनए है. सो इंडिकेटिंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल है. डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. हर्शी-चास एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करवाया. द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स clearly indicating that the result of experiments clearly indicate that only DNA, not the proteins, enter the bacterial cell, protein coat left outside. ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिलता है. हर्शी-चास एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन को डिक्लेयर करवाया, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट को डिक्लेयर करवाया. इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट ओनली डीएनए, नॉट द प्रोटीन्स. ओनली डीएनए जो है, जो बैक्टीरियल सेल के इनसाइड में पाए गए, इंटर द बैक्टीरियल सेल में पाए गए प्रोटीन कोट लेफ्ट आउटसाइड, जो कि प्रोटीन कोट लेफ्ट आउटसाइड. इसी प्रकार से
the DNA enter the host cell. DNA are entering the host cells carries all genetic information for the synthesis of the new fag particles. जो वायरसेस को रिप्रोडक्शन के समय एसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उसका जो रिप्रोडक्शन होता है दैट विल बी बेस्ड ऑन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सो डीएनए आर एंटरिंग द होस्ट सेल कैरीज ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू फैग पार्टिकल्स. जो न्यू फैग के जो पार्टिकल्स है, हेड है, टेल है, मिडल पीस है, डीएनए है, जो भी वहाँ पे फैग के जो पार्टिकल्स है वो न्यूली सिंथेसाइज करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ, देयर इज एसेंशियल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. There is a need of a genetic information for the synthesis of the new fag particle. New viruses के, न्यू बैक्टीरियोफैग के पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की नीडेड होती है, एसेंशियल्स होते हैं, वो डीएनए में पाए जाते हैं. और डीएनए ही bacterial cell में where inside the bacterial cell are enter and then replicate, that is reproduction of the phages or phages particles are the take place. Now in this certainly prove that DNA is a genetic material in a bacteriophages, not protein. This certainly prove that DNA is a genetic material. DNA ही genetic material है in a bacteriophages, not protein. Protein genetic material नहीं है. हम overall discussion regards to the Hershey-Chas experiment, ये आपको क्लियर हो गया. जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैरिड आउट किया तो ये आपको क्लियर हो गया. ओके, जब बैक्टीरियोफैग क्या है? वायरस है. ये वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवाता है. बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने के बाद सो कॉल्ड द बैक्टीरियोफैग. बैक्टीरियोफैग इज द T2 बैक्टीरियोफैग आर यूज टू बैक्टीरिया, which bacteria are used? E. coli bacteria are used for the experiments. देन सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया? टेक रेडियोएक्टिव मीडियम्स. जैसे कि हमें पता है कि डीएनए में फॉस्फोरस पाए जाते हैं, प्रोटीन में सल्फर पाए जाते. प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं पाए जाते, डीएनए में सल्फर नहीं पाए जाते. उन्होंने दो अलग एक्सपेरिमेंट्स में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उन्होंने जो रेडियोएक्टिव मीडियम लिया उस पर वायरसेस को ग्रो किया. That viruses are having a DNA, radioactive DNA, and another medium which are having the radioactive sulfur. जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज किए, फॉस्फोरस के लिए 32 है, सल्फर के लिए 35 ऐसा है. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को वहां पे यूज किया है. सो आफ्टर दैट दिस मीडियम फॉर्मिंग द radioactive DNA and radioactive proteins. After then our infection to the bacterial cell. बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन करवाया. इन्फेक्शन करवाने के बाद जो रेडियोएक्टिव डीएनए है दैट विल बी कॉज द इन्फेक्शन टू द बैक्टीरियल सेल एंड दिस डीएनए आर द फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. अनदर मीडियम एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटीन को इंसर्ट करवाया. प्रोटीन्स सल्फर के साथ आता है तो सल्फर इज नॉट फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. लेकिन जो डीएनए के साथ फॉस्फोरस पाए गए उनकी रेडियोएक्टिव टेस्ट करवाने के बाद द रेडियोएक्टिव टेस्ट ऑफ द इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल, इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल की रेडियोएक्टिव टेस्ट में फॉस्फोरस आर फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल
and another there is no phosphorus are found in the radioactive test. So इससे पता होता है कि DNA enter the host cell carries a genetic information for the synthesis for a new phase particles. This certainly prove that DNA is the genetic material in a bacteriophage, not a protein. प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हर्षे-चास एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन्स है क्लियरली इंडिकेट दैट ओनली डीएनए not the proteins enter the bacterial cell, protein coat left outside. जो आउटसाइड में पाए जाते हैं प्रोटीन आउटसाइड में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट के बाद में हम गोज टू द फिनिश दी हर्षे-चास एक्सपेरिमेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ दी RBC ऑनलाइन बाय दत्तात्रेय राउत इज़ दी गोज टू YouTube. Type the RBC online in the browsers of the YouTube, RBC online by दत्तात्रेय राउत and like my videos. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।